So today's topic is going to be on types of centrifugal casting. Recently we have studied what is centrifugal casting. We have learned their advantages, disadvantages, and I have introduced two type of centrifugal casting. Now today we are going to learn about what are the types of centrifugal casting, what are their applications and their diagrammatic representation. Okay, so let's start with true centrifugal casting. True centrifugal casting. What is the use of true centrifugal castings? Okay, the true centrifugal casting method of casting is used to produce hollow casting with a round hole. So this type of casting is used for casting of hollow casting which is having a round hole. Okay, so it's the use. Now let's see the feature. The characteristics feature of this process is that the hole is produced by a centrifugal force alone and no core are used. So see, here we want a hollow portion, but here cores are not used. Okay, how are they produced? They are produced by the centrifugal force alone. Okay, the mold is rotated about the axis of the hole with the axis held horizontal, inclined or vertical. Now the how the now how is the mold hold? Mold is hold at horizontal, inclined or vertical in any matter. Okay, in any axis, and it is rotated at that axis. Okay, no cores are used. Important point. Okay, the outside surface of the job may be round, square, hexagon, etc., and should be symmetrical with the whole axis. So the outside portion, that is outside surface of the casting, true casting, centrifugal casting, can be anything. It can be round, it can be square, it can be hexagon, etc., which should be symmetric with the whole axis. Okay, the central hole should be round to be formed without core. Central hole is round without cores. Long casting like cast irons, soil pipes are cast with the mold rotated about the horizontal axis. Okay, then casting with relatively short length are poured with mold rotated about an inclined or vertical axis. So the long castings are rotated along horizontal axis and the short castings in length. Okay, short in length, not in other things. Short in length are rotated along inclined or vertical axis. इज इट क्लियर? सो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या फिर इंक्लाइन एक्सिस पे रोटेट करते हैं, जिसमें ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कब करते हैं, जब हमें अंदर का जो पोर्शन है वो हॉलो चाहिए. ओके, और ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर यूज नहीं किया जाता. हॉलो चाहिए तो कोर नहीं यूज नहीं किया जाता. उसके बाद जो आउटर सरफेस है वो राउंड हो सकती है, आपकी स्क्वायर हो सकती है, हेक्सागोन हो सकती है, एक्सेट्रा एनी शेप हो सकती है, पर जो अंदर का जो आपका पोर्शन है वो राउंड ही रहेगा. ओके, वो राउंड रहेगा, वो भी विदाउट हेल्प ऑफ कोर. और ये क्यों होता है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज rotation about the vertical or inclined axis is convenient, but the central hole produced will be slightly paraboloid. तो रोटेशन along वर्टिकल और इंक्लाइंड एक्सिस जो है वो कन्वीनियंट है, ठीक है, पर जो अंदर का जो हॉलो पोर्शन हमें बनाना है वो थोड़ा पैराबोलाइड होगा विथ स्मॉल डायमीटर एट द बॉटम. नाउ व्हाई? बिकॉज द मेटल हैज अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी. क्यों होता है? बिकॉज इट इज मेटल हैज अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन
ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे देखिए, अगर इंक्लाइन एक्सिस है तो आपका ये ड्रम होने वाला है, आपका ये कास्टिंग होने वाला है, मोल्ड होने वाला है। अगर वर्टिकल एक्सिस है तो आपका ये होने वाला है। सो ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन व्हाट विल हैपन, ये अब ये आउटर सरफेस है, इधर आपका ब्लू मटेरियल, ठीक है, ये कास्ट हो रहा है। सेंटर को तो हॉलो है, ये कास्ट हो रहा है। पर ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ का जो मटेरियल है, जो इनर सरफेस पे, वो नीचे फ्लो होगा। सिमिलरली इधर भी वो नीचे फ्लो होगा, जिसके वजह से जो अंदर का आपका जो हॉलो पोर्शन है उसका डायमीटर ऊपर ज़्यादा रहेगा और नीचे कम रहेगा। ओके, वाई द बिकॉज द मटेरियल हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, now I will show you the systematic diagram for true centrifugal cast. So this is a diagram for true centrifugal process, true centrifugal casting process. Okay, so this is a vertical axis, sorry, this is a horizontal axis. See, this is a mold, this is a drive roller, this is a free roller. So drive roller rotates the mold and free roller is there for the support. Okay, this is a pouring basin. So this is a very simple type of diagram which you can draw in your exam. Okay, the speed of the rotation for the the speed of the rotation for the true centrifugal casting should be high enough to hold the material onto the mold wall till it solidifies. जो आपका रोटेशन का स्पीड है वो हाई होना चाहिए एंड इट मस्ट बी ऑन टिल, कब तक, जब तक आपका जो मटेरियल है वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, एट टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम आपका जो रोटेशन है वो हाई स्पीड में चालू हो रहना चाहिए। A slow speed of rotation would result in raining or slipping the material inside the mold. अगर लो स्पीड होगा रोटेशन का तो क्या होगा, जो मटेरियल आपका टॉप सरफेस पे लग रहा है वो स्लिप होगा, वो नीचे गिरता जाएगा। सो आपको जो स्पीड है वो एकदम हाई भी नहीं रखना है और एकदम लो भी नहीं रखना है। जैसे मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में एक बताया था कि हाई स्पीड से क्या हो सकता है, बहुत ही हाई स्पीड अगर रखा तो सरफेस क्रैक्स जो है सरफेस पे आपके जॉब के आ सकते हैं, इसलिए एकदम हाई स्पीड भी नहीं रखना है। और लो स्पीड से क्या होता है हमने अभी देखा। टू लार्ज अ स्पीड ऑफ रोटेशन on other hand may result in internal stresses and possibly hot tears. See, जो limitation of centrifugal casting हमने पिछले बार टॉपिक कवर किया उसमें बताया था मैंने कि क्रैक्स आ सकते हैं। वैसे ही अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड अगर रोटेशन का रहा तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इंटरनल स्ट्रेसेस आते हैं और फिर हॉट टीयर्स भी होने के पॉसिबिलिटी है। हॉट टीयर क्या है, हॉट टीयर इज अ डिफेक्ट इन कास्टिंग, इट इज अ सैंड डिफेक्ट। हमने सैंड कास्टिंग डिफेक्ट्स में ये पढ़ा है हॉट टीयर्स क्या होता है। और इंटरनल स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस से क्या हो सकता है, इंटरनल स्ट्रेसेस से आपके क्रैक जा सकते हैं आपके जॉब पे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और ये इंटरनल स्ट्रेसेस कैसा हार्म करता है ये हमने मेटलर्जी पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्पीड विच would provide a centrifugal force of 60 to 75 times the force of gravity on horizontal mold and 100 times force of gravity for vertical mold is found to be suitable. नाउ अभी यहाँ पे रेंज दी गई है, ओके, आई एम मार्किंग इट विद ब्लू। यहाँ पे रेंज दी गई है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, यहाँ रेंज क्या दी गई है, तो कितना टाइम्स का आपका ओके, हाउ 60 इंटू ग्रेविटी आपका हॉरिजॉन्टल के लिए चाहिए और वर्टिकल के लिए अराउंड 100 चाहिए, तो इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका होना चाहिए। द मोल्ड यूज्ड फॉर द प्रोसेस
may be metal mold or refractory of sand line mold. सो मोल्ड के दो टाइप्स कौन से हो सकते हैं आपके? आपका हो सकता है एक तो मेटल मोल्ड हो सकता है, या फिर आपका सैंड लाइक लाइन मोल्ड हो सकता है, रिफ्रैक्टरी सैंड लाइन मोल्ड या फिर मेटल मोल्ड. ओके, दिस टाइप्स ऑफ मोल्ड्स कैन बी यूज्ड. सो दिस वाज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. ओके, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या है, यूज क्या है, उसका फीचर क्या है, ये हमने अभी देखा. कैसा किया जा सकता है, मोल्ड कैसे है उसकी हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा. बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. मोल्ड है, आपको 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने हैं. यहाँ पे जो आपको कॉपर कलर का दिख रहा है वो आपने फीडेड किया हुआ मटेरियल है. ठीक है, जो ये ड्राइवर रोलर है उसको स्पिन दिया जाता है, उसको स्पीड दिया जाता है. फ्री रोलर इज फॉर द सपोर्ट ऑफ मोल्ड. ठीक है, ये रोटेट होता है और उसके वजह से ये रोटेट होता है, मोल्ड आपका रोटेट होता है हाई स्पीड पे रोटेट होता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो जो मोल्ड अपना हमने मटेरियल डाला है वो सब आपके मोल्ड के आउटर सर्किट के इनर डायमीटर पे लगता है. ठीक है, और वो कब तक कंटिन्यू करते हैं हम, स्पीड उसकी हाई स्पीड कम तक कंटिन्यू करते हैं जब तक जो मटेरियल है अंदर का वो सॉलिडिफाई ना हो जाए. यहाँ पे आपको दिखाया गया है पोरिंग बेसिन, मोल्ड, साइड व्यू. तो ये एंड व्यू है, ये साइड व्यू है आपका. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस फॉर ट्रू सेंट्रीफ्यूगल casting. So application for true centrifugal casting is common products produced by true centrifugal casting are: first is your pipes, second is your oil engine cylinder, third is your piston ring stock, gear blank stock, उसके बाद आपके bearing bushes. ठीक है, so these are the materials which are actually produced with the help of true centrifugal casting. ठीक है, सो हमने आज कवर किया ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. उसमें यूजेस, उसके प्रोसेस कैसी यूज होता है, उसका एक हमने रेंज पता की कि वर्टिकल के लिए एक्स टाइम्स कितना एक्स टाइम्स ऑफ ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल के लिए, इंक्लाइन के लिए कितना कितना हमने सब देखा. उसके बाद एप्लीकेशंस देखे. एप्लीकेशंस में हमारे पाइप है, ऑयल इंजन सिलेंडर्स है, पिस्टन रिंग स्टॉक्स है, गियर ब्लैंक्स स्टॉक्स है, एक्सेट्रा. एंड हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा. सो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.